Dear students of class 12, we are going to start definite integral. See, when you talk about definite integral, the name itself reveals that the first one was what? Indefinite integral. What we used to do, we used to put plus c. And here, when it is definite, means one thing is very clear, the definiteness has to be ensured. Definiteness को हमें ensure करना पड़ेगा. Now the question is how to ensure it. At first I'll tell you कि how we'll proceed and how we are going to do the question. पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि question कैसे करेंगे और फिर जो उसका background है I'll explain here the background also. Just see, if integration fx dx is equal to capital Fx, let's suppose that when you integrate you get something, then a to b, this is lower limit upper limit, isn't it? Fx dx is equal to fx, the same, a to b, and what you are writing, fb minus fa. We'll take one example. We are going to integrate as usual. जो हम जैसे integrate करते थे, we'll integrate the same way. Only the upper limit put the value, lower limit put the value. जो पहली वैल्यू है उसमें से दूसरी वैल्यू को you have to subtract. For example, if you have example number 1, minus 1 to plus 1 x plus 1 dx. इसको if you are going to integrate, the first one is x square by 2 and plus x, means we have integrated as usual. In some of the cases you may have to do the integration separately and after that take the limit. So what is the value here? It is minus 1 plus 1. What you are going to have? You are going to have 1 square by 2 plus 1. This is the first one. Minus 1 square plus 1, and here it is by 2. This is what we have done. भाई अपर लिमिट को पहले इसमें डाल देते हैं, जितना भी आया लोअर लिमिट को डाल देते हैं एंड सेकेंड वाले को वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. इट बिकम्स 1 by 2 plus 1, यानी कितना हुआ जी? इट इज 3 by 2. And here also it is 1 square 2 3 3 by 2, so the answer is equal to 0. Though I have taken first example, but this is question number 1 of exercise NCERT exercise 7.8. ये पहला हो गया. जो example 2 है वो question number 2 है. It's very easy. This is log x. भाई 1 by s का कितना होता है? log, and here it is how much? 2 and 3. What you will write? log 3 minus log 2. What is this? Is it log 3 by 2? That's all. So this is how we do. Now the question is, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि if you have to find the definite integral, आपको अलग से कुछ नहीं करना है. क्या करना है? You have to simply integrate as usual and you have to subtract the value of the given function obtained after integration when we put the lower limit from the value when we get by putting the upper limit. This is what we have done. देखिए, though now it is not in the syllabus, but when we were talking about integration as limit of sums, तो वहां लोगों ने कुछ इस तरह से बात की थी. आपके पास अगर यहां पर ये है, यहां पर ये है, हम कहते हैं ये ए है, ये बी है, यहां से हमने कोई स्ट्रिप ले लिया था. अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा एक आइडिया रखिए. इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम्स, बेसिकली ये क्या होता है? ये एरिया है. अगर हम कहते हैं कि भाई हम कैसे इसको निकालते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये वैल्यू होती है यहां से शुरू होकर के यहां तक छोटी 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 जो एरियाज हैं, स्ट्रिप्स हैं, इन सभी स्ट्रिप्स को समेशन ले लेते हैं. दैट ओनली बिकम्स व्हाट? ए टू बी व्हाट? fx dx. What is fx dx? This is y is equal to fx. Y means what? ये वाला. dx means ये वाला. यानी हमने एक रेक्टेंगल का, हालांकि वो रेक्टेंगल है नहीं क्योंकि एक एरिया में उसका क्या है, देखिए ये इस तरह से है, लेकिन when these two things are very close to each other, that is why वहां बोलते हैं when limit h tends to 0, यानी जब उसकी width जो है approximately 0 हो जाती है तो हम उसको रेक्टेंगल मान सकते हैं. तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि ये fx and dx इज लेंथ इनटू ब्रेथ है भाई.
ये y है और ये dx है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, और उसी का समेशन निकाल लिया। और एरिया के एरिया फंक्शन क्या हुआ, कहां से निकाला, फ्रॉम a टू b। तो इसकी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं a टू b fx dx से। बहरहाल आप इतना ही याद रखिए, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग अलग से देखेंगे एंड देन विल गो फॉर फर्दर स्टडी। अब देखो बेटे, जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस कह सकते हैं कि ओरल टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन चूंकि दिया हुआ है एनसीईआरटी में तो हम कर रहे हैं। डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन की आप उम्मीद मत करिए। जो आने वाले क्वेश्चन होंगे हम बता देंगे, बीच में हो सकता है कहीं एक दो का इसमें, जैसे इसका कहीं यूज हो सकता है, इसका कहीं यूज हो सकता है, लेकिन ऐसे जनरली ये क्वेश्चंस दे आर नॉट मींट फॉर एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से लगता है कि दे आर टू इजी। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 4x टू द पावर 4/4 माइनस 5x टू द पावर 3/3 प्लस 6x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 9x। आपने सिर्फ क्या किया है, इसको इंटीग्रेट कर दिया और यहां लिख दिया 1 और 2। ये 4 कैंसिल, यहां से 2 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ जी, 3। अब जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी, यहां पर वैल्यू होगी 2 टू द पावर 4 माइनस 5/3 2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। ये हमने क्या कर दिया, जहां भी x था वहां हमने 2 कह दिया, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 1 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 टू द पावर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो आपसे उम्मीद की जाती है कर लेंगे आप। जब इसको आप करते हैं तो इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यू कैन सी दिस वन। ये तो हुआ साहब एक क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, इट्स दैट इज सो इजी। साइन 2x का कितना होता है जी, इसी इट इज माइनस कॉस 2x बाई 2। हमने 1/2 को बाहर कर लिया, माइनस होता है तो बाहर करो, यानी क्या हो गया, साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x बाई 2, 1/2 बाहर कर लिया। और ये लिमिट कितना है जी, लिमिट है 0 टू π/4। अब क्या करोगे, -1/2, यहां पर होगा cos 2 इंटू π/4, जहां x था वहां हमने क्या लिख दिया, π/4 रखा, माइनस cos 2 इंटू 0, ये 2 हो गया, यानी हमारे पास हो गया -1/2। You know cos π/2 is equal to 0 and cos 0 is equal to 1, यानी आंसर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि द क्वेश्चंस आर सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x का कितना होगा जी, इट इज sin 2x एंड डिवाइडेड बाई 2, हियर इट इज 0 टू π/2। क्या होगा बच्चों, इट इज 1/2। क्या लिखना है, इट इज sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0, ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू होती है 1/2। आपको पता है sin पाई की वैल्यू कितनी, द वैल्यू ऑफ sin पाई इज इक्वल टू 0, तो sin पाई इज इक्वल 0, sin 0 इज इक्वल 0, सो द आंसर इज 0। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, इसका आंसर हो गया, पहले का हो गया 1/2, दूसरे का हो गया 0। अब जो तीसरा क्वेश्चन दिया, अभी इससे आसान सवाल तो यार नहीं हो सकता। कह रहा है e टू द पावर x 4 to 5, ये तो बच्चा लोग वाला सवाल दे दिया। इसकी वैल्यू क्या होगी जी, e टू द पावर x इनसाइड द ब्रैकेट 4 to 5 e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4। हाँ, अगर इसमें से e टू द पावर 4 कॉमन ले लोगे तो होगा e-1, नहीं तो ये भी चलेगा। जो सेवेंथ क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, क्योंकि दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला। इसको आप क्या लिखोगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 टू π/4। क्या दिया है बेटा, tan x dx। याद आ रहा है tan x का कितना होता है, tan x का होता है क्या, log sec x। याद आ रहा है, tan x का होता है माइनस log cos x करिए या log sec x करिए, तो log sec x हो गया, और ये हो गया 0 टू π/4। कितना होगा बेटा, ये हो गया log sec π/4 माइनस log sec 0। अब देखो log sec π/4
cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो ये कितना होगा जी? इट इज इक्वल टू log√2 एंड व्हाट इज sec 0? cos 0 का मान कितना होता है 1, तो sec 0 का भी मान कितना होगा 1, ये कितना होगा माइनस log 1, इसको आप लिख सकते हो log2 टू द पावर 1/2 और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, यानी आपके पास हो गया 1/2 log2। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए अभी भी जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल वही ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं। जैसे कोसेक एक्स को आप क्या लिखते हो जी? log कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, यही ना होता है इसका इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हम का बात कर रहे हैं। और यहां पर हमारे पास है π/6 और ये π/4, यानी क्या होगा log कोसेक π/4 प्लस कॉट π/4, ये तो एक साथ हो गया, माइनस log कोसेक π/6 प्लस कॉट π/6, ये हो गया सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वल टू log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक π/4? कोसेक π/4 मींस व्हाट? साइन π/4 का उल्टा होगा, यानी ये कितना होगा जी? ये √2 एंड कॉट π/6, tan π/6 का मान कितना होता है 1/√3, याद आ रहा है tan 30 डिग्री, तो cot 30 का उसको उल्टा होगा, ये कितना हो गया प्लस √3, ये तो ऊपर वाले का हो गया, और माइनस क्या जी log कोसेक π/6, कोसेक π/6 मतलब क्या जी? कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा 2 हो गया, क्यों? साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक का मान 2/1 एंड cot π/6, cot π/6 का मान क्या होगा जी? आई एम सॉरी, आई थिंक यहां पर π/4 होना चाहिए था ना, क्यों? क्योंकि हम पहले π/4 को रखते हैं। यहां पर कितना होगा बेटा? यहाँ cot π/4 का 1 होगा, यहाँ कितना हो गया? कोसेक π/6 की वैल्यू हो गई 2 एंड cot π/6 की वैल्यू 1/tan π/6, tan 30 डिग्री मतलब क्या? इट इज √3, यानी हमारे पास हो गया log 1 प्लस √2/2 प्लस √3। So this is the answer for question number 8। ये प्लस नहीं होता है जहां तक हमको याद है, कोसेक का होता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, क्या? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये हमारे पास हो गया √2 - 1 एंड 2 - √3। हमको लग रहा है कि अब सही हो गया, ये हमने गड़बड़ कर दिया था, ये आप करेक्शन कर दीजिएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अब इससे आसान सवाल क्या होगा? अगला सवाल जो है वो हमारे पास क्या है भाई? इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/√2 sin x², को हम क्या लिखते हैं जी? दिस इज साइन इनवर्स x 0 to 1 साइन इनवर्स 1। बेसिकली यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट हो रही है, और साइन इनवर्स 1 यानी π/2, तो ये कितना हो जाएगा π/2 - 0 इज इक्वल टू π/2। आपको पता है साइन π/2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? साइन π/2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक वही बात यहां पर भी है, देयर इज अ डायरेक्ट फार्मूला, tan इनवर्स x 1/1 प्लस x² का होता है tan इनवर्स x, लिमिट क्या है 0 to 1 है, क्या होगा बेटा? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1? π/4 - 0 इज इक्वल टू π/4। अब देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 1/x² - 6a² ds का मान क्या होता है जी? 1/2a log x - a by x + a। याद आ रहा थोड़ा थोड़ा? यही तो फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला में रख दो। ये 1 है यानी कितना है
1 स्क्वायर है, क्या होगा बेटा, ये होगा 1/2 इंटू 1। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू हो गई 1 इंटू log x माइनस 1 बाई x प्लस 1। क्यों? x माइनस a बाई x प्लस a। और ये पूरा जो है कितना होगा, 2 to 3 हो गया। इंटीग्रेशन वैसा ही। अब यहां देखो, इट इज 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट। अब फर्स्ट वाले में क्या लिखने वाले हो, log 3 माइनस 1/3 प्लस 1। क्या किया, जहां x था वहां 3 रख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर दूसरा हो गया क्या, log 2 माइनस 1/2 प्लस 1 एंड इट्स लाइक दिस। एक बार हमने अपर लिमिट को रख दिया, फिर हमने लोअर लिमिट को रखा और दूसरे वाले को पहले वाले में सब्ट्रैक्ट कर दिया। कितना हुआ बच्चों बताओ, 1/2। इट इज log 1/2। ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। और यहां पर माइनस हाउ मच, log 1/3। क्यों, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। अब ये कितना हो गया, 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट log m माइनस log n। याद आ रहा था थोड़ा, क्या होता है बच्चों, log m माइनस log n की वैल्यू क्या होती है, ये होती है log m बाई n। तो हम क्या लिखेंगे, log 1/2 बाई 1/3 यानी कितना जी, 3/1 यानी कितना हो गया, 1/2 log 3/2। देखो बेटा, हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो एक तरह से ये पूरा जो है द रिवीजन टेक्स प्लेस। तो जितने तरह के क्वेश्चंस हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में किया है, करीब करीब उतने तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ करेंगे। और जो एनसीईआरटी में छूट गया है उसको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कर देंगे। अलग से मैं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट इन बिटवीन। देखिए पहले, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, cos स्क्वायर एक्स। हमें पता है कि cos स्क्वायर एक्स, मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूं, इट इज 1 प्लस cos 2x बाई 2। याद आ रहा है? और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2 को हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ये dx कह दिया, और ये लिमिट हो गया 0 और ये हो गया π/2। मतलब आई एम सॉरी, इट इज प्लस, यानी cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब देखो, जब इसको इंटीग्रेट करते हो, ये 1/2 अब बाहर रखो, तो इसका होगा x और इसका हो जाएगा sin 2x बाई 2। ये 1/2 बाहर, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 का x cos 2x का sin 2x बाई 2। लिमिट हो गई 0 से π/2। कितना हुआ बेटा बताओ तो, दिस इज 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, x की जगह पर कितना आया, π/2, sin 2 इंटू π/2 डिवाइडेड बाई 2। यानी जहां x था वहां आपने π/2 कह दिया, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 0 प्लस साइन 0/2। साइन 0 का मान होता है 0, इसलिए बाई 2 नहीं लिखा, छोड़ दिया। यानी ये कितना हो गया, 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट π/2। और देखो ये कैंसिल हुआ, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0, ये 0, ये 0, यानी हमारे पास कितना हुआ जी, 1/2 इंटू π/2, यानी कितना हो गया, π/4। ये कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 11 की तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो यहां आपको थोड़ा सा 1 मिनट के रुकना पड़ेगा। हम लिखते हैं कि लेट i इज इक्वल टू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। मान लिया i, हम अभी 0 to या 2 to 3 नहीं लिख रहे हैं, पहले हमने उसको i लिख लिया, मैंने पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करते हैं, हम कहते हैं कि याद रखिए, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन वाला अलग से हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ये वाला वहां भी हो सकता है, लेकिन हम एक तरीका और बता रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। तो क्या होगा बेटा, हमने कहा लेट, आपको पता है ना इसका ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, याद आ रहा, अगर आप लिखते 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx 1/2 करना पड़ता,
ऐसे भी कर सकते थे, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आपको इतना ही करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि सर इतना तो हमको पहले से पता है, आप एकदम बच्चे की तरह से क्यों कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, तो इसके बाद आप करो दिस इज इक्वल टू 1/2 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एंड द लिमिट इज व्हाट 2 to 3। पता है आपको कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो हम डायरेक्ट लॉग लिखते हैं, यानी हो गया 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डायरेक्ट हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। तो अगर ऐसा होता ना कि f डैश एक्स बाई एफ एक्स, याद आ रहा है बच्चों, बहुत पहले हमने कहा था f डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, log ऑफ एफ एक्स होती है। ये याद रखिएगा, खूब काम आता है, खूब यूज होता है। इवन आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो वहां भी होगा। अब इतना अगर पहुंच गया तब क्या करना है जी, ये यहां पर है 2 और यहां पर है 3, तो आपने कहा 1/2 log 2 स्क्वायर प्लस आई एम सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 स्क्वायर प्लस 1। भाई एक बार जहां x वहां 3 रख दिया, फिर 2 रख दिया, यानी हो गया 1/2 log 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस log 5। और आगे बढ़ाइए 1/2 log 10/5 दैट इज 1/2 log 2। ये वही है px प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम पहले इसको दूसरे ढंग से लेके देख लेते हैं डायरेक्ट, जो क्योंकि ये इजी है। हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू 0 to 1, it is 2x by 5x square plus 1 dx and plus 3 into 1 by 5x square plus 1 dx। इतना तो हम आराम से कर सकते हैं। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। यहां जब पहुंचते हैं तो यू कैन राइट हियर 5 एंड हियर यू कैन राइट 1/5। समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 10x, तो हमने यहाँ 10x प्राप्त कर लिया। क्लियर हो गया क्या? हम देखिए एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, यहां नहीं करते हैं, हम लिखते हैं 1/5 0 to 1, यहाँ 5 into 2 into x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, मतलब हो जाएगा 10x डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 1/5। 5 से जो मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि हम डायरेक्ट लॉग लिख देंगे। सेकेंड वाले में आप लिखिए इंटीग्रेशन 3/5, 5 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1/x स्क्वायर, जब 5 को आप बाहर निकालिएगा तो यहाँ 1/5 होगा, तो ये होगा 1/√5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं? हम इसको 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको ला रहे हैं। लिमिट आपको पहले से पता है 0 to 1 है, तो ये भी 0 से 1 होगा, लिमिट इधर उधर नहीं जाएगा, लिमिट जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। कितना होगा बेटा बताओ तो? ये 1/5, इसका याद है कितना होता है? इसका हो जाएगा log 5x स्क्वायर प्लस 1, और इसकी लिमिट होगी 0 से 1 माइनस सॉरी प्लस 3/5, मैं यहां लिखता हूं प्लस 3/5 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो हम लिखते हैं इंटू 1/a, 1/a मीन्स व्हाट 1/√5 इंटू tan इनवर्स x बाई 1/√5। हमारी बात समझ में आ रही है? 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, वही मैंने यहाँ लिखा है। लिमिट तो वही रहेगी, तो लिमिट अगर रहेगी तो आप इसको लिमिट कर लीजिए। लिमिट क्या हो रहा है 0 से 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट लिखते हैं, वैल्यू को लिखते हैं तो हो गया 1/5, ये लाग देखिए 1 लिखते हैं, अगर 1 लिखेंगे तो होगा 5 इंटू 1 स्क्वायर 5 प्लस 1 6, तो ये हो गया log 6। हमने क्या रख दिया यहाँ पर जी, x यहाँ पर 1 रख दिया, एंड
माइनस log 1, ये फर्स्ट वाला क्लियर हुआ, 1/5 आउटसाइड, log x यहाँ पर 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1, 5 + 1 6 log 6, और यहाँ x का मान 0 तो हो गया log 1, वाला हुआ। दूसरा ये हमारे पास होगा 3/√5, देखिए ये √5 ऊपर चला जाएगा तो √5/5 इज इक्वल टू √5, ठीक है बच्चों। और ब्रैकेट में क्या होने वाला है जी, tan इनवर्स √5 इंटू 1, क्यों, क्योंकि √5 ऊपर चला जाएगा तो √5x/1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0। अब देखिए log 1 की वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 log 6 प्लस 3/√5 इंटू हाउ मच, tan इनवर्स √5, और tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है 0, भाई tan 0 का मान 0 तो tan इनवर्स 0 का मान 0 हो जाए, तो इसका मान हो गया, याद आ रहा है ना, tan 0 का मान 0, therefore 0 इज इक्वल टू हाउ मच, ये 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का मान 0 हो गया, वो 0 हो गया, तो आपके पास वैल्यू कितनी हो गई। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, ये डायरेक्ट नहीं है, हम इसमें लिखते हैं लेट I इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि अभी लिमिट वाला हमने जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में जब लिमिट चेंज होता है तो कैसे होता है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इसलिए हम पहले इसको कर लेते हैं। हम कहते हैं कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt/2। x ds का मान तो हमारे पास पता चल गया, x ds का मान हो गया dt/2, therefore I इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t इंटू dt, क्यों, क्योंकि dt/2 है, 1/2 बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया जी, 1/2 e टू द पावर t, यानी 1/2 e टू द पावर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यानी आपने पहले इसको इंटीग्रेट कर लिया, आपने जब इसको इंटीग्रेट कर लिया तब आप लिखोगे, उसके बाद लिखोगे देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर 0 to 1, this is equal to 1/2 e to the power 1 minus e to the power 0, 1/2 e minus 1 हो जाना चाहिए, जहां तक हमको लगता है 1/2 e minus 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए आपके पास हमने क्या बताया था, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि ऊपर वाले का पावर, यानी ओरेशनल, जो हमने याद आ रहा है ओरेशनल फंक्शंस होते हैं, रेशनल फंक्शंस में क्या हो रहा है, ये इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर होता है, तो ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बराबर जो हो रही है। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन नंबर 16 इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है और ये बहुत लंबा खींचता चला जाता है, इसलिए तो हमारी वीडियो जो है काफी लंबी नहीं हो जाए इसलिए हमने लिखने का समय बचा लिया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन हियर इटसेल्फ। जस्ट सी इट्स गिवन from 1 to 2 5x square by x square plus 4x plus 3, as I have already told you कि भाई अगर ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इम्प्रॉपर तो है ही, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले के पॉलिनोमियल के डिग्री से ज्यादा है या बराबर है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम उसको प्रॉपर में लाते हैं, प्रॉपर में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए अगर आपको 5x स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, तो आप क्या करोगे, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो कितना होगा जी 5, आप यही ना कहते हैं जी, ये 5 हो गया, इस 5 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा बेटा, ये होगा 5ab स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, ये माइनस 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 कैंसिल, माइनस क्या हो गया 20x प्लस 15, तो आप क्या लिखते हो, आप यही लिखोगे ना भाई कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू 5
प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय दिस। तो जो प्लस है, चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया हो, हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया था। तो यानी आपके पास जो दिया हुआ था इंटीग्रेशन करने के लिए फ्रॉम 1 to 2, अब उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो इसको दो पार्ट में करते हैं। एक क्या करोगे बेटा, ये 5 का क्या है, कांस्टेंट है, तो x हो गया। हमने कहा x 1 to 2 और इंटीग्रेशन 1 to 2 20x माइनस प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखो x 2 माइनस 1, इसको हम मान लेते हैं I1, यानी इसको मानिए 1। यहां तक क्लियर हो गया? क्या हमने कहा, इसको अब हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं। किस पर? ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये 5i इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस i इज इक्वल टू 5 माइनस I1 है। इसी में हमको सबको ले आके रखना है। अब जो हमारे पास I1 है, अब हमारे पास फिर एक तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया उसी में, है कि नहीं? तो दूसरा क्वेश्चन क्या लेंगे भाई, ये 1 to 2 20x प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। मैंने आपको एक चीज बताया था, या तो आप इसको px प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करिए, या अगर आप कर सकते हैं, सक्षम है, तो डायरेक्ट कर लीजिए। इसको जब हम करते हैं तो हम करते क्या है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो देखो बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 4। ये किसका डेरिवेटिव है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना है, ये 2x प्लस 4 है। तो हम कहते हैं भाई 2x प्लस 4 तो चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ही ऊपर 2x प्लस 4 होगा और नीचे हमारे पास वो एक्सप्रेशन होगा, तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, लॉग नीचे वाला। यही तो हम आपको बताते हैं। क्या हमने बताया था आपको याद है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, और यहाँ dx है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या बोला था, इसकी वैल्यू होती है log fx। मतलब ये हुआ कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है तो हम उसको डायरेक्ट log लिख लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको मैं बगल में लिख दे रहा हूं, आप फिर देखिएगा। उसके बाद देखिए, मेरे पास है 20x प्लस क्या 15। हमने इसको पहले लिख दिया क्या, 2x प्लस 4 हमने क्यों लिख दिया, 2x पर क्यों लिखा बेटा, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव है, तो हमने पहले उसको लिख दिया। और बाकी अब चीजों को एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 10, तभी ना 20 होगा जी। तो ये हो गया 10 इंटू 2x क्या 20x, लेकिन यहाँ 40 है और आपके पास एक्चुअली कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो यहां से आप क्या करोगे, -25, इसको बगल में लिख लीजिएगा। मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ किया है भाई। इसको हमने, अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो हमने लिखा 10 टाइम्स 1 to 2 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस, याद रखिए, -25 1 to 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गए। ये वाला क्या है, डायरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि आप बगल में लिख दोगे कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, देयरफॉर इट वी कैन डायरेक्टली राइट व्हाट, log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 1 to 2। यहां क्लियर हो गया। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। मैंने थोड़ा सा जल्दी क्या कहते हैं, अपने हिसाब से कर लिया है, वो अच्छा नहीं है, आपको करना पड़ेगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को क्या लिखोगे बेटा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1। ये समझ में आ रहा है हमने क्यों 4 कर दिया, क्योंकि ये होगा 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहां क्लियर है? क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया था कि वो 1 बाई एक्स स्क्वायर में से। और ये अगर इसका इंटीग्रेशन है, dx है dx है dx है, तो आपके पास पता है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 बाई 2a log x माइनस ए बाई हाउ मच, x प्लस है। वही तो मैं कह रहा हूं, यहाँ x यहाँ पर कितना है, x प्लस 2 है। क्लियर है?
एंड a की जगह पर कितना है 1 है, तो हम क्या लिखेंगे log x माइनस a, यानी x प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया x प्लस 1, आपको दिखाना पड़ेगा बगल में, और डिवाइडेड बाई क्या x प्लस ए, तो x मीन्स व्हाट x प्लस 2 प्लस 1, तो कितना होगा x प्लस 3। यहां तक क्लियर हो गया। क्या होगा, आप पहले 2 को रखिए, तो 2 का मान क्या होगा log 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 3 5, तो log 3 बाई 5 हो गया, माइनस क्या हुआ ये 1 बाई 2 यहां आ गया था, फिर 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 3 4, तो ये 2 बाई 4 होगा। हमने उस 1 बाई 2 नहीं कहा है, हम उसको 2 बाई 4 ही रखते हैं। कारण क्या है कि we want that everything should be expressed in terms of log 2, log 3, log 4, log 5। देखिए इसके बाद आप बढ़िए, तो ये देखिए क्या है हमारे पास, ये हमने बताया था कि ये कितना होगा जी 15 को 5 इंटू 3, तो log 5 प्लस log 3 10 आ गया। 8 को लिखोगे 4 इंटू 2, 8 को क्या लिखोगे 4 इंटू 2, तो क्या होगा log 4 प्लस log 10 log 4 प्लस log 2, तो उस केस में हमारे पास कितना हो जाएगा 10 का 2 का 10 का हमारे पास है ना log 2, ठीक है, ये हमारे पास होगा माइनस, क्यों, क्योंकि log 4 प्लस log 2 माइनस बाहर है तो ये दोनों माइनस हो गए, माइनस 25/2, यहां पर क्या होगा log 3 माइनस log 5, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा log 2 माइनस log 4, तो वो माइनस जब होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से देखो, कहा था कि अब सभी 5 वाला को, तो log 5 यहां पर एक है, और देखो कहां पर है log 5, तुम्हारा log 5 यहां पर है, ये है, यहां पर 25/2 है, और यहां पर 10 है, तो हमने यहां क्या लिखा 10, देखो ये 10 है और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हमने कह दिया 10 प्लस 25/2 क्या log 5। अब हम log 4 पर आते हैं, log 4 कहाँ है, देखो यहां पर ये log 4 है, क्या है माइनस 10 log 4 है, और यहां पर log 4 है विद माइनस 25/2, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 25 होगा, माइनस 25/2 होगा, और यहां पर क्या है माइनस 10 है, तो वही मैंने लिखा है प्लस माइनस 10 माइनस 25/2 log 4। अब log 3 पर आते हैं, देखो log 3 के पास क्या है 10 log 3 यहां पर है, तो हमने यहां पर प्लस 10 कर दिया, और यहां पर तुम्हारे पास एक log 3 है, लेकिन जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस 25/2, तो वही मैंने यहाँ कहा 10 माइनस 25/2 log 3। लास्ट वन log 2 की बात करते हैं, तो देखो ये माइनस log 2 है, तो मैंने माइनस 10 कर दिया, और यहां पर जब 2 में करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस 25/2 है माइनस 2 है, तो कितना होगा माइनस log 2 है, तो कितना होगा प्लस, तो वही मैंने कहा माइनस 10 प्लस 25/2 log 2, यानी log 5 log 4 log 3 log 2 एक साथ हमने कर दिया। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू होगी 10 गुना के 20 25 45/2, यहां पर हो गया 10 गुना के 20 और माइनस 25 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 45/2 log 4, 10 गुना के 20 माइनस 25 दैट इज माइनस 5/3, एंड 10 गुना के 20 प्लस दैट इज माइनस 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 5/2 log 2। यहां तक क्लियर हो गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट I1, इसको हम बोलते हैं 2। अगर हमारे पास 2 आ गया, और 2 मतलब क्या, जो दूसरा वाला हमारा इंटीग्रल था उसका वैल्यू आ गया, तो अगर ये वैल्यू आ गई तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर, अब 1 में क्या रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 into 1, हम कहते हैं यूजिंग 2 in 1 वी गेट, क्या मिलता है बेटा देखो तो I इज इक्वल टू 5 माइनस ये वाला पूरा, मतलब क्या 45/2 log 5/4 प्लस 5/2 log 3/2। हमने इस पूरी की व्यवस्था जो है वो माइनस था, यहां देखो ना 5 माइनस I1 था, तो हमने इसको वहां पर कर दिया, वहां लेके चले गए। इन दोनों में से अगर आप 5/2 कॉमन ले लो, देखो 5/2 दोनों में कॉमन है, 5/2 कॉमन होगा तो इस केस में क्या होगा 9 log 5/4 माइनस हाउ मच log 3/2, सो दिस इज द आंसर। ये थोड़ा सा लंबा हुआ, जल्दी हम ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट यू शुड नो। क्वेश्चन नंबर 17 है, इट्स नॉट समथिंग बिग, एंड एटलीस्ट अगर मुझे क्वेश्चन पढ़ देना होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं देंगे, क्योंकि इसमें कुछ करने का स्कोप नहीं है, फिर भी आप देख लो
ये दिया हुआ 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx को इंटीग्रेट करना है, तो पता है sec स्क्वायर का tan x, x क्यूब का x⁴/4 एंड यहाँ 2 का क्या होगा जी, 2 तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर x होगा। लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/4, जहां जहां x है वहां हमने क्या कर दिया, π/4 रखा, तो 2 tan π/4, π/4 to the power 4 1/4, 2 into π/4 माइनस 2 into tan 0 0, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 to the power 4 और 0 0 हो गया। tan π/4 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 π/4 to the power 4 to the power 5 प्लस π/2, और 4 to the power 5 की वैल्यू होती है 10 और 24। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। 0 to π sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2। देख के हड़कने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अगर एक साथ दे दिया है तो हमने क्या लिखा, माइनस बाहर करके लिख दिया cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि cos स्क्वायर x/2 माइनस, सब मल्टीपल में पढ़ा होगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू हाउ मच, cos x। पता है कि cos 2x की वैल्यू याद आ रहा है, cos 2x की वैल्यू होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो अगर ये x होता है तो ये x/2, वही मैंने यहाँ पर कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, cos x। cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 to π sin π माइनस sin 0 दैट इज इक्वल टू, sin π का मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है, इसलिए कितनी हो गई वैल्यू, 0 हो गई। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इस तरह क्वेश्चन की चर्चा मैं बार बार करता रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो 0 to 2, दो पार्ट में कर देंगे। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 2x, तो हमने इसको लिखा 3 into 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। यहां तक तो क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। और सेकेंड वाले में हो गया 3 इंटीग्रेशन 0 to 2 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस हाउ मच, 2 स्क्वायर। इसलिए तुमने इनको अलग अलग किया था। यहां वैल्यू कितना होगा बेटा, 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये समझ में आ रही बात क्या, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, सो हमने log ले लिया। लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 प्लस 3 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई, तो क्या लिखेंगे a, तो क्या होगा 1/2 tan इनवर्स x by 2 एंड द वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 2। अब सिंप्लीफाई कर लो, 3 log, ध्यान से देखना, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4, तो कितना होगा log 8 माइनस log 4, क्यों, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा। यहां पर हमारे पास कितना है जी, 3/2, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0। भाई एक बार हमने 2 को रखा, एक बार 0 को रखा, ये वैल्यू हो गई 3 log 8/4। ये समझ में आ रही बात क्या, log m माइनस log n, और यहां 3/2 log, सॉरी 3/2, देखो ये 2/2 1 है, tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 माइनस ये हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यानी हमारे पास कितना हुआ जी, 3 log 2, 4 2 जा 8, तो 3 log 2 प्लस 3 पाई बाई कितना 8, यानी 3 टाइम्स log 2 प्लस पाई बाई 8। सही आंसर आ रहा है 3, ठीक है, बिल्कुल सही है, 3 log 2 प्लस 3 π/2, यहीं पर आंसर छोड़ दिया है। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। क्या देखा आपने, जो हमारे पास क्वेश्चन था हम ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़े, किसके चक्कर में, याद है, पी एस प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के चक्कर में। हमको लगा कि डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट क्या कर दिया, हमने कहा भाई देखो इसको अलग कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, अलग कर दिया। न्यूमरेटर को हमने डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के रूप में कर दिया, डायरेक्ट लॉग हो गया, उसका तो फॉर्मूला पर डायरेक्ट यूज हो गया। आफ्टर दैट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू। देखो क्वेश्चन में जो 20 है ये थोड़ा सा बढ़िया है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट है प्लस समथिंग एल्स। देखो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, तो हम क्या लिखते हैं, पहले इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, यहां तक चलेगा।
एंड माइनस cos पाई एक्स बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4। हमने पहले सबको इंटीग्रेट कर लिया। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो जिसका इंटीग्रेशन हो गया उसका हिसाब बराबर करो भैया, आप 0 से 1 रहिएगा, और अभी यहां लिखा है तो 0 से 1 लिखो, और यहां पर आप कर दो कि भाई ये 0 से 1 है। सीधी सी बात है, जो इंटीग्रेट हो गया वहां ब्रैकेट करके 0 से 1 कर दिया, जहां नहीं हुआ उसको भी रखते हैं कि चलिए सब आपको देखेंगे। तो ये हो गया 1 e टू द पावर 1 माइनस 0, ये तक खत्म हो गया, माइनस e टू द पावर x का वाल क्या जी 0 to 1, और माइनस 4 बाई पाई तो चलेगा, 4 बाई पाई बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा cos पाई बाई 4 माइनस cos 0, क्योंकि एक बार 1 रहेगा और एक बार 0 रहेगा। ये हो गया e, यहां पर भी हो गया माइनस ई टू द पावर 0, ध्यान रखिएगा e टू द पावर 1 e टू द पावर 0, ये वाला हो गया, माइनस 4 बाई पाई cos पाई बाई 4 का मान कितना चाहिए 1 बाई रूट 2, और इसका मान कितना होता है 1, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी e टू द पावर 0 का मान 1, तो ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4 बाई रूट 2 पाई एंड प्लस 4 बाई पाई, बस जो यहां आ रहा है 1 माइनस 4 बाई रूट 2 पाई एंड प्लस 4 बाई पाई, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस, देखिए इसको आप क्या लिखोगे 2 इंटू रूट टू बाई रूट 2 पाई, ये समझ में आ रहा है, 4 को 2 इंटू 2 और 2 को क्या लिखा रूट 2 इंटू रूट 2, इस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो हो गया 1 प्लस 4 पाई माइनस 2 रूट 2 पाई। सो हियर इज द आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो बेटे जो लास्ट दो क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 टू रूट 3 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोलता है कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन से होंगे। इसको हम सीधा कहते हैं कि भैया देखो ये तो हमें पता है कि ये tan इनवर्स x होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x, एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 टू रूट 3, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, वैल्यू हो गई tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1, लेकिन हमें पता है कि tan कितने का मान रूट 3 होगा जी, तो ये होता है वैल्यू पाई बाई 3 की, और ये वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, और ये बात समझ में आ रही है, ये पाई बाई 3 होता है ना, tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, दोनों का एलसीएम कितना होगा जी 12 हो गया, ये 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज पाई बाई 12, सो विच वन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, सो आंसर इज डी। पहला तो क्लियर हो गया साहब, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक नंबर का सवाल कह सकते हैं मल्टीपल। ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारे पास i इज इक्वल टू 0 टू 2 बाई 3 1 बाई 9 प्लस 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर dx है, शायद यही क्वेश्चन है, यस ये 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर 0 टू 2 बाई 3 dx, ये क्वेश्चन है। हम इसको क्या लिखेंगे बेटा 1 बाई 9 मैंने बाहर कर दिया, यहाँ क्या लिखा 0 टू 2 बाई 3 और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर dx हो गया। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा था लेकिन यूज करोगे तो क्या होगा 1 बाई 9 1 बाई ए मीन्स व्हाट 1 बाई 2 बाई 3, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 बाई 3, और इसको आप ब्रैकेट में कर दो 0 से 2 बाई 3, सिंप्लीफाई करो देखो कितना आता है, इसकी वैल्यू हो गई ये 3 हो गया, वैल्यू हो गई 1 बाई 6 tan इनवर्स 3x बाई 2, लिमिट इज 0 टू 2 बाई 3, अब क्या करोगे 1 बाई 6 tan इनवर्स, देखो बेटा x की यहाँ पर 2 बाई 3 है
तो आप क्या लिखोगे 3/2 इंटू 2/3 माइनस tan इनवर्स 0, x का मान है 0, ये कैंसिल हो गया तो हो गया 1/6 tan इनवर्स 1. And what is tan inverse 1? That is 1/6 into pi/4, that is pi/12. So what is the answer? I think the first one is the answer. First one or second one is the answer. Sorry, not 12. It is 24. So C is the answer. So this way we have completed exercise 7.8. Here I have tried my best to explain everything whatever is given. But if you ask me, I am not satisfied with the level of the questions. इस लेवल का क्वेश्चन करने के लिए आप क्लास 12 थोड़े आए हैं. तो जो थोड़ा सा अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस हैं उनकी हम चर्चा जस्ट विल कंटिन्यू विद दिस ओनली.